Are we expecting more people or that is it? That is it? तो इधर आ जाओ. Hurry up, hurry up, hurry up. Hurry up. So that's your first class, right? इस सब्जेक्ट की सेकंड क्लास. What was covered in the first class? Types of contract. Types of contract में क्या किया था? Any other topic apart from types of contract? That's it. और भी कुछ कवर किया था टॉपिक? Okay, ठीक है. You know the syllabus? Everybody knows the syllabus? Yes or no? I want you to respond. Even if you are sitting at the end. मेरी आवाज आ रही है, तुम्हारी भी मेरे तक आनी चाहिए. Right? Was the syllabus discussed? Okay. So your syllabus covers, number 1 unit covers Indian Contract Act 1872. It is divided into two parts. The main Indian Contract Act and the special contracts. Part 1 covers the Indian Contract Act. Part 2 covers the special contracts. Special contracts are further divided into three parts. Number 1, bailment pledge. Bailment. Number 2, indemnity guarantee. And number 3, contracts of agency. This is your Unit 1, Part 2, special contracts. Part 1 covers the Indian Contract Act. Unit number 2 has Sales of Goods Act 1930. Unit 2 covers Sales of Goods Act 1930. Unit 2, Part B covers Negotiable Instruments Act 1881. Unit 2, Part B covers Negotiable Instruments Act 1881. Unit 3, Part A covers Companies Act. Unit 3, Part A covers Companies Act 2013. Unit 3, Part B covers LLP. Unit 3, Part B covers Limited Liability Partnership Act 2008. Last unit, Unit 4, Part A covers Consumer Protection Act. Part B covers Right to Information Act. Right to Information Act 2005. So in total you have how many acts? Majorly 7 acts. ठीक है. यूनिट 1 के अंदर दो पार्ट में हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया है. ये तीन जो थे दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. सबसे ज्यादा वेटेज यूनिट 1 की ही है.
कितने मार्क्स का पेपर आता है? 75 या 70? 90? ओके। तो मेजर प्रोपोर्शन, अगर आप इनको 4 यूनिट को डिवाइडेड बाय 4 करो, सॉरी 100 मार्क्स को डिवाइडेड बाय 4 करो, 25% एक यूनिट का नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% इज यूनिट 1। ओके, सो डू दैट थॉरली। यूनिट 1 के अंदर यू पीपल आर सेइंग दैट यू आर डन विद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ओके, अच्छा ये बेसिकली इसके बारे में ब्रीफ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नॉर्मल भाषा में बता दो, नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स में क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है? Agreement enforceable by law. Okay. Section 2 it says that contract is agreement enforceable by law is a contract. What is an agreement? What is an agreement? ऑफर, सबसे पहले आता है ऑफर, राइट? लेट्स से आई एम ऑफरिंग टू सेल दिस मोबाइल फोन, ऑफर। You are accepting to purchase this mobile phone, acceptance. This leads to promise. I am modifying my promise. I am ready to sell this mobile phone for, let's say, rupees 10,000. Consideration. Consideration may be in cash or kind. Kind का मतलब क्या होता है? Something having monetary worth. ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं यहां से 2 पत्ते निकाल के तुम्हें दे दूंगी, दैट इज काइंड, बट दैट इज नॉट हैविंग मॉनिटरी वर्थ, राइट? सो इन काइंड का मतलब होता है समथिंग हैविंग मॉनिटरी वर्थ। ओके, आई एम रेडी टू सेल माई मोबाइल फोन फॉर रुपीज 10,000, यू आर अग्रीइंग टू इट, दैट फॉर्म्स एन अग्रीमेंट। हमने उसको प्रॉपर कागजी कार्रवाई करी, एनफोर्स कराया, स्टैम्प पेपर पे लिखाया, दोनों पार्टीज का साइन हुआ, दैट लीड्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जब आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर पढ़ा होगा देयर हैज टू बी एन ऑफर, देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करा है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करा है। ओके, लेट मी रन थ्रू इट अगेन। नंबर 1, हेडिंग डालो, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए फॉर इट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए फॉर इट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नंबर 1, 2 पार्टी मिनिमम, राइट? इफ आई एम डूइंग सम प्रॉमिस टू माई सेल्फ, दैट इज अ कमिटमेंट, right? One person alone cannot make a contract with themselves. Hence, number 1 point is minimum 2 people are required. Second point, there has to be an offer and acceptance. There has to be offer and acceptance. Offer and acceptance. Offer में कोई भी legal term and condition हो सकती है, अग्री? ऑफर में कोई भी लीगल टर्म एंड कंडीशन हो सकती है। मैं ये नहीं बोल सकती कि ये मोबाइल फोन लेना है तो यहां से कूद जाओ, दैट इज नॉट लीगल, राइट? कुछ भी अगर लीगल है तो वो मैं ऑफर के अंदर डाल सकती हूँ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड।
एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एब्सोल्यूट का मतलब है इन फुल, या तो मेरा पूरा ऑफर एक्सेप्ट करो या पूरा ऑफर रिजेक्ट करो. अनकंडीशनल का मतलब है नो इफ्स एंड बट्स. राइट. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आई एम रेडी टू सेल दिस मोबाइल फोन फॉर ₹10,000. आपने बोला कि नहीं, हमें 8,000 में चाहिए. दैट इज व्हाट? दैट इज काउंटर ऑफर. दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस. राइट. So for it to be called as an acceptance, it has to be absolute and unqualified. फिर मैं आपकी काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करूंगी. राइट. इफ आई हैव अनदर काउंटर ऑफर, नहीं 9,000 में करते हैं, then that is again a counter offer. You may be accepting or not. Right. So for it to be an acceptance, it has to be absolute and unqualified. Right. जो भी आपने ऑफर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए ऑफर में, अदरवाइज इट विल लीड टू ब्रीच. ब्रीच मतलब तोड़ देना, पूरा कंप्लीट ना करना. वन और मोर टर्म एंड कंडीशन नॉट फुलफिल्ड इज ब्रीच. ठीक है. थर्ड एसेंशियल, पहला एसेंशियल मिनिमम 2 people. सेकेंड एसेंशियल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तीसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इफ दिस क्लास हैज मोर देन 50 people one fine day, then you all are invited to my house for dinner. I had no intention to create legal relation. मान लो आप लोग आ भी गए मेरे घर पे डिनर के लिए और ताला लगा हुआ है. You will not file a case on me, right? Because it was a social offer. I had no intentions to create any legal relation in this particular offer. It was a social offer. तो मेरा इंटेंशन ही नहीं था. तो अगर मेरा इंटेंशन नहीं है और आपको भी पता है कि ये वो बस ऐसे ही ऑफर था, बट आप पहुंच गए, you will not file a case on me for breaching it. कि आप खुद ही नहीं थे घर पे, आपने तो हमें डिनर पे इनवाइट कर लिया. ठीक है. तो इसके अंदर अगर लिखना है तो सोशल ऑफर डू नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट एसेंशियल कंसिडरेशन. कंसिडरेशन 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 मतलब मनी, कैश और मनी इज वर्थ. राइट. कंसिडरेशन के अंदर 2 पॉइंट लिखने जरूरी है. पहला मनी और मनी इज वर्थ. दूसरा समथिंग इन रिटर्न. मनी और मनी इज वर्थ. दूसरा कीवर्ड समथिंग इन रिटर्न. समथिंग इन रिटर्न का मतलब ये, हाँ, देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज. मान लो आप चैरिटी कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, सो दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. ये हम कंसिडरेशन के अंदर एक्सेप्शन में पढ़ेंगे. देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स इन दिस चैरिटी डोनेशन. राइट. बट अगर मैं वैसे बोलूं, अगर क्वेश्चन आए कि यू हैव अग्रीड टू डू सम डोनेशन to XYZ firm, XYZ organization. Is it a contract? You will say on the face of it, no, because there is nothing in return. Right? बाकी हम consideration के अंदर it could be a valid consideration also. Right? बता देती हूँ. For example, आप किसी orphanage के अंदर गए, ठीक है.
वहां पे आपने प्रॉमिस करा कि हम 10,000 पर महीना आपको देंगे. You have promised it that you will give 10,000 per महीना. In return, you are not seeking anything yet, right? सामने वाली पार्टी ने, मतलब कि उस ऑर्फनेज ने, आपके इस प्रॉमिस के बेसिस पे एक पार्क बनाना शुरू कर दिया अपने ही प्रीमाइसेस के अंदर, झूले लगाना शुरू कर दिया ऑर्फनेज बच्चों के लिए. ठीक है. So on your basis, on your words, on your promise, they have started to do something. Right? Now you are compelled to donate. It makes a valid contract. Even then, even when you are not getting directly anything in return. Okay? अगर ऐसा कुछ चैरिटी में आप कर रहे हो और उन्होंने कुछ काम शुरू कर दिया है आपके प्रॉमिस के बेसिस पे, then you are compelled. They can file a case कि आप हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, 2 महीने हो गए. ठीक है. नेक्स्ट एसेंशियल लिखो, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज. कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज. कॉम्पिटेंस मतलब एलिजिबिलिटी, कैपेसिटी. मतलब जो 2 लोग हैं वो एंटर करने लायक होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, most of the contracts with a minor are void in nature. Most, right? Not all, right? Most of the contracts with a person below the age of 18 are not valid, void in nature. Okay? मतलब पार्टी कॉम्पिटेंट ही नहीं है. ठीक. Contracts with a person of unsound mind are void in nature. गलत है. ठीक है. अनसाउंड माइंड क्या है? अनसाउंड माइंड का मतलब ओके, ओके, ठीक है. मेंटली अनस्टेबल वन पार्ट. हम जनरलाइज करके इसको बोलते हैं somebody who does not have the capacity to take rational decisions. राइट? वो अनस्टेबल माइंड असाइलम में भी हो सकता है, वो अनस्टेबल माइंड कोमा में भी हो सकता है, वो अनस्टेबल माइंड बहुत हाई फीवर में भी हो सकता है, वो अनस्टेबल माइंड आपका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स अल्कोहल भी हो सकता है. राइट? somebody who is not in a position to take rational decisions is an unsound mind. Right? Contracts with somebody who is in jail, not valid in nature. Right? तो यहां पे ये पॉइंट क्या बोल रहा है? The parties who are entering into contract must be competent. ठीक. अगला, free and genuine consent. फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट मतलब हाँ, हाँ, फ्री कंसेंट का मतलब है देयर शुड बी नो कोर्जन, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, नो फ्रॉड एंड नो मिसरिप्रेजेंटेशन. ठीक. लेट्स ब्रेक दिस डाउन. कोर्जन क्या होता है? जो इन्होंने बोला, किसी को थ्रेटन करना, फोर्स करना, फिजिकली और मेंटली. इनसे रिलेटेड पार्टीज को थ्रेटन या फोर्स करना कि हम तुम्हारे घर वालों के साथ कुछ कर देंगे. राइट? हम तुम्हारी प्रॉपर्टी में आग लगा देंगे. राइट? हम तुम्हें हार्म पहुंचाएंगे. ऑल दीज आर कोर्जन which should not be there for it to be a genuine free consent. Right? Undue influence. Right? For example, father, son, doctor, patient,
राइट, अक्यूज, पुलिस पर्सन, तो इनके बीच देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, एंड वन पार्टी इज इन द डोमिनेंट पोजिशन. डॉक्टर पेशेंट में डॉक्टर इज इन द डोमिनेंट पोजिशन, फादर सन में फादर इज इन द डोमिनेंट पोजिशन, राइट, and that dominant person you abuses their dominance, then it is undue influence, right. dominance में होना बुरी बात नहीं है, but dominant position को abuse करना बुरी बात है, right. तो डॉक्टर ने कुछ भी अपने मेडिकल लैंग्वेज के अंदर कुछ प्रेस्क्राइब कर दिया, राइट, पेशेंट तो वो ले लेगा, तो दैट इज undue influence if it is not in good faith. ठीक है, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन डॉक्टर पेशेंट. फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशन टू डिसीव. मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इन दोनों में एक ही फर्क है, एक शब्द का. यहां पे इंटेंशन टू डिसीव है फ्रॉड के अंदर, यहां पे देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव. राइट, यू हैव रेड ऑल दिस, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? वेयर हैव यू रेड इट? पहली वाली क्लास में CACS. ओके ओके ओके, बैक टू क्लास. सिर्फ एक फर्क है, अगर आपको 3 शब्द लिखने हैं तो यहाँ पे लिखो इंटेंशन टू डिसीव, यहाँ पे लिखना है नो इंटेंशन टू डिसीव, दैट्स इट, राइट. मैं क्लास में सिर्फ कीवर्ड्स बता रही हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा बुक से. और नहीं, मेरा पढ़े रहा. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू डू? हाँ, इतनी मोटी आपकी एक मैं बुक लाई हूँ आपकी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की. नो दिस इज अ नॉवल, दिस इज समथिंग एल्स, दिस समथिंग एल्स. आई टेल यू एट द एंड. There is a textbook, इतनी मोटी, SLM इतना, and then you want to do this, and then you write this, right? Law के अंदर तो लिखना पड़ता है, okay? So I'm just giving you the keywords कि ये तो लिख के आना ही है, important है, right? Fraud for example, मुझे पता है कि ये छत लीक करती है, right? मैं बिल्डर हूँ, मैं आपको घर दिखाने से पहले उस लीकेज को फिक्स कर रही हूँ, और वो लीकेज फिक्सेशन सिर्फ 1-2 हफ्ते या फिर 3 महीने रहेगी. 3 महीने के बाद आपकी छत टपक रही है, राइट. मतलब मैंने जानबूझ के आपके साथ गलत करा है. आई हैव डन इंटेंशनल फ्रॉड, इंटेंशन टू डिसीव था मेरा कि बिक जाए एक तरीके से, बस है, राइट. मिसरिप्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल आई एम द मिडिल पर्सन, मिडिल मैन, राइट. मुझे नहीं पता कि इसकी छत लीक भी करती थी, तो मैंने आपको घर उसी फुल रेट पे बेच दिया. बाद में आप तो मुझे पकड़ोगे, ओनर को थोड़ा ना पकड़ रहे हो, आप तो बोलोगे आपने मुझे घर बेचा है, देखो छत लीक कर रही है. तो मैं बोलूंगी आई बिलीव्ड इट टू बी ट्रू, मुझे नहीं पता था कि छत लीक करती है. आई सोल्ड द प्रॉपर्टी इन गुड फेथ, हेंस मिसरिप्रेजेंटेशन का चार्ज लगेगा. फ्रॉड के अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस भी होते हैं, यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. यहाँ पे पेनल्टी प्लस जेल हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ पेनल्टी होती है, या फिर ये सजा दी जाती है कि आप रिप्लेस करके दो, जिसका उसने प्राइस फुल पे करा है उस प्रॉपर्टी में उसको शिफ्ट करो, राइट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लीगल ऑब्जेक्टिव. लीगल ऑब्जेक्टिव एसेंशियल के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, लीगल ऑब्जेक्टिव. तो नाम से पता लग रहा है, लीगल ऑब्जेक्टिव मतलब the objective for which you are making the contract should be legal in nature, not to murder somebody, right. Everything is there, offer is there, acceptance is there, consideration is there, but the objective is not legal. हाँ, क्यों? क्योंकि अगर लीगल ऑब्जेक्टिव नहीं है then it will never be a contract, it will only be an illegal agreement. एसेंशियल्स खत्म. अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? अभी आपने बोला एनफोर्सिएबिलिटी का, राइट.
अग्रीमेंट प्लस लॉ की एनफोर्सिएबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, विद मी? यस और नो? ओके. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, राइट? ये भी पढ़ा होगा. हाँ जी. हाँ संडे उसकी क्लास होगी ना ऑफलाइन. एंड में बोलेंगे. मैं बोल दूंगा, रिलैक्स में. ओके. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. विद मी? राइट. वैलिड तो हो गया जिसके अंदर सारे जो अभी हमने एसेंशियल लिखे वो सब प्रेजेंट है, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? हाँ, voidable is here. It may become void, it may become valid. कैसे? Okay. Any other example? हाँ, ओके. इसी को आगे करेक्ट, बिल्कुल ठीक. कि लेट्स से मैंने आपको गन पॉइंट पे रख के बोला साइन करो, राइट? साइन करने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि आप कल ही अपनी गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ दे रहे हो. दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल, राइट? ओनली फॉर गिविंग एग्जांपल्स. डू नॉट sue me फॉर दिस, राइट? तो लेट्स से मैंने आपसे साइन करा लिया गन पॉइंट पे रख के, ठीक? कि कल ही आप सब कुछ बेच रहे हो मुझे मेरे नाम पे. अब आपके पास वो 24 घंटे हैं. आप चुप रह सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, फाइल कर सकते हो मेरे पे FIR. अगर आप चुप रहे तो किसी को क्या पता लग रहा है आपने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों करी? तो इट विल बी अ वैलिड, राइट? अगर आप चले गए, FIR फाइल कर दी, तो इट विल बी वॉइड. मतलब क्योंकि मैंने आपसे फोर्सफुली सब कुछ कराया है, हेंस इट इज वॉइड, मतलब इनऑपरेबल, नहीं हो सकता पूरा, राइट? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं है, कोर्जन है, फ्री कंसेंट नहीं है. ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल फीचर्स कुछ पॉइंट मिसिंग है, इसलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज हियर, व्हाट इज दिस? मतलब कैसे बनता है ये? यही गलती करते हो. अग्रीमेंट स्टार्टिंग से गलत, मतलब कोई एग्जांपल? इलीगल है, ओके. मान लो कोई इलीगल चीज है, ठीक है? इलीगल चीज क्या? लेट्स से कोई ऐसे ड्रग्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड टू बी सोल्ड एंड लेट्स से सम पर्सन हैज टोल्ड यू टू सेल फॉर अ कॉम्पेंसेशन, फॉर अ कंसिडरेशन, राइट? इलीगल है, उसमें कभी लॉ आएगा ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. तो इलीगल अग्रीमेंट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म कभी लेगा ही नहीं. आर यू गेटिंग इट? अग्रीमेंट को जब आप, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? तो वॉइड अग्रीमेंट हुआ ना. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब आपने उसमें लीगल एलिमेंट डाल दिया है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना है. बट मैं बोल रही हूं कि ये यहीं पे इलीगल हो गया. यू आर नॉट एबल टू पुट सम लीगल एलिमेंट इनटू इट. आप नहीं उसको नोटरी पे जाके, स्टैम्प पेपर पे जाके लिखवा सकते, नहीं करवाओगे, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो तो इलीगल अग्रीमेंट है. मतलब कि इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड अग्रीमेंट्स. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? डिफरेंस है. वॉइड अग्रीमेंट आर वॉइड ab initio. शुरू से ही गलत, ab initio, from the initial stage. Void agreements are wrong, void from the beginning.
आप उसमें लीगल कुछ डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो अग्रीमेंट ही गलत आधार पे बना है, कॉन्ट्रैक्ट वो बनेगा ही नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट मेड फ्रॉम वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि वो वॉइड अग्रीमेंट वहीं फुल स्टॉप लग गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर, फॉर एग्जांपल, देयर इज सम, लेट्स से मैंने जो आपको ड्रग्स बेचने के लिए बोले थे, अलाउड थे अभी, 2 दिन के बाद हमारी लेट्स से डीलिंग थी 1 साल की, कि आप हर 3 महीने के बाद ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मुझे आके लाके दोगे, फॉर विच दिस इज द कॉम्पेंसेशन आई विल गिव। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट right? क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लेना देना प्राइवेटली अलाउड था पहले। लेट्स से देयर इज अ चेंज इन लॉ वे सरकार सेज कि ये ड्रग्स अलाउड नहीं है प्राइवेटली लेना देना। हमारी तो 1 साल की डीलिंग हुई थी, 2 दिन के बाद सरकार ने लॉ चेंज कर दिया, राइट right? तो नाउ प्रीवियसली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज नाउ बिकम वॉइड, inoperational, non-functional because of change in law. Okay. Void contracts are made from valid contracts, which due to certain circumstances have now become inoperational. और क्या रीजन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, पार्टी की डेथ हो गई, राइट right? अब मैंने बोला था कि आप बहुत अच्छे पेंटर हो, आप मेरी शादी में पेंटिंग करोगे, you have no other assistants with you, sorry not you, some other person, right? there is a person जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं वो, और वो अकेले ही पर्सन है, they have no assistants with them, there is no other person working. तो मैंने उन्हें बोला कि आप मेरी शादी में आके लाइव पेंटिंग करना, शादी से पहले उनकी डेथ हो गई, तो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था दैट हैज नाउ बिकम वॉइड बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ पार्टी, राइट? So void contracts are made from valid contracts, which due to certain circumstances like deaths, change in law, outbreak of war, has now become void. Okay. Void contracts are not made from void agreements. Void agreement मतलब full stop, ab initio यहीं पे खत्म, ये चीज होगी नहीं तो ये बनेगा नहीं, ठीक? ओके। एक्सप्रेस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करा था, तासी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर तासी कॉन्ट्रैक्ट्स? दोबारा बोलो। एक्चुअल में मुझे सुनाई नहीं दिया। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है बट एक्चुअल में नहीं है, ओके ये बिल्कुल पहली लाइन यही लिखी होती है, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियलिटी, देन व्हाट दीज आर? दे आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, अनाउंसमेंट थी दैट 3 नवंबर को आपकी क्लास नहीं है ऑफलाइन, 3 नवंबर अगला संडे आपकी ऑफलाइन क्लास सेंटर पे यहां पर नहीं है, ठीक? कमिंग बैक टू तासी कॉन्ट्रैक्ट्स, विच क्या वो तो मुझे याद आ गया, मैंने बता दी, वरना याद नहीं आता मुझे तो मैं नहीं बताती। कैसे?
अच्छा ये अभी करते हैं, इसको एंड में टुवर्ड्स एंड सॉर्ट करते हैं, याद रखना, लिख लो ऊपर स्टार मार्क कर लो, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड में। अभी के लिए खासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर गोइंग और आपको एक वॉलेट पड़ा हुआ दिखा, आपके पास तीन ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, टाप के चले गए, किसका मुझे क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही ऑप्शन, मोस्टली पीपल यही करते हैं। दूसरा ऑप्शन, सब कुछ अंदर का जो भी है डाला और वॉलेट फेंका और चले गए, इमोरल वर्जन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, आपके अंदर एक जागरूक सिटीजन है, वो जागरूक सिटीजन बोलता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ तो एड्रेस, कुछ तो कार्ड, कुछ तो होगा जिससे मैं इसके ट्रू ओनर को फाइंड करके ये पर्टिकुलर वॉलेट विद द अमाउंट दैट इज देयर इन इट एज इट इज उसको जाके दूंगा, राइट। तो कासी कॉन्ट्रैक्ट में जब आपको कुछ लॉस्ट चीज पड़ी हुई दिखी, यू आर नॉट बाउंड बाय इट, so it is not a contract. But if you have decided the third option, then you are having some rules या फिर obligations and some duties and some rights, ये तीनों एक ही चीज है, and some rights under the कासी contract, right? तीसरा ऑप्शन चूज करते हो तो there are some rights, there are some duties inferred upon you, ठीक है। क्या तुम्हारी कंपनी में क्या काम है, मतलब मुझे क्या पता तुम्हारी कंपनी में क्या काम है। अच्छा, contract is not always related to organization and organization, it could be between you and me also if we are competent parties, right? समझ रहे हो, contract is everyday happening, you between the organization, you between SL, you between him if you register it, him between you both and me, right? So कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यही थोड़ी ना होता कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन या यू एंड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, इट कुड बी बिटवीन पीपल ऑल्सो। सबसे पहला पॉइंट एसेंशियल में ये तो लिखा मिनिमम 2 पीपल, इट कुड बी बिटवीन 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ अच्छे से बोल दो ना, अगर आ गया नहीं आया तो बोलो फिर दोबारा, ठीक है। तो इफ देयर आर 2 पीपल, जिसका वॉलेट गिरा है और जिसको वॉलेट मिला है, ठीक है, तो दिस कासी कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल अगर आप तीसरा ऑप्शन लेते हो, बीइंग अ मॉरल सिटीजन टू रिटर्न दी वॉलेट टू दी ट्रू ओनर, तब आपके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस और राइट्स आपके लिए कुछ अवेलेबल अंडर द कासी कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ऑफर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने वॉइड बता दिया, वॉइडेबल बता दिया, वैलिड बता दिया, कासी बता दिया, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी पता ही होगा, एग्जीक्यूटेड पास्ट टेंस हो चुका है, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर लिया, एग्जीक्यूटरी होने वाला है, होगा, या तो एक पार्टी ने कर दिया, एक पार्टी के पार्ट में बचा है, दोनों पार्टी ने कुछ कुछ कर दिया, राइट, ठीक, ओके। एक्सप्रेस इम्प्लाइड, एक्सप्रेस मैं लिखित या फिर ओरल आपको बोल रही हूं ये करने के लिए, इम्प्लाइड कुली ने मेरा सामान उठाया, मैंने उसे मना नहीं किया, इम्प्लाइड है कि मैं उसे पैसे दूंगी, राइट। मैं बस में चढ़ी, या तो मेरे पास बस पास होना चाहिए या फिर मेरे पास पैसे होने चाहिए टिकट लेने के लिए, किसी ने पकड़ लिया और टिकट नहीं है तो मेरे को फाइन लग सकता है बिकॉज आई हैव ब्रीच्ड द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। हाँ अरे लेट्स से आई एम अ मेल, मैं न्यू दिल्ली में, ठीक है, ओके। ऑफर, ऑफर की बात करते हैं, दिल्ली में नहीं लगेगा, बाकी मैं हरियाणा में ट्रैवल कर रही हूँ, राइट, मैं कहीं और ट्रैवल कर रही हूँ तब तो लगेगा, क्या ऑफर, ओके ऑफर, terms of offer must be certain,
Terms of offer must be certain, not loose or vague. Terms of offer must be certain, not loose or vague. Certain, certain मतलब specific, right? कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये मॉडल की, ये स्पेसिफिकेशन के साथ, ये रंग की, ठीक है। अगर मुझे लेट्स से लीज पे लेनी है, रेंट पे लेनी है, किसी भी चीज के लिए लेनी है या फिर खरीदनी है, तो आई हैव टू स्पेसिफाई, राइट। मैंने बोला मुझे गाड़ी चाहिए और उन्होंने मुझे, लेट्स से आई हैव अ फैमिली ऑफ 7 और उन्होंने मुझे हैचबैक दे दी, 5 लोग बैठ सकते हैं। मैंने बोला कि मैंने केस फाइल कर दिया उनपे कि मैंने तुम्हें बोला था मुझे गाड़ी चाहिए, 7 लोग मेरे साथ आए भी थे, तुमने अज्यूम क्यों नहीं कर लिया? अज्यूम नहीं करोगे तुम, मुझे बताना पड़ेगा, राइट। इफ लेट्स से केमिस्ट के पास भी आप जाते हो या फिर कहीं भी कुछ भी कोई भी चीज खरीदने जाते हो, दे विल नॉट अज्यूम, यू हैव टू टेल, राइट। सेकंड, ऑफर के अंदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस बोल के लिखित, इम्प्लाइड कुली वाला एग्जाम्पल, बस टिकट वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ठीक। सोशल ऑफर जो मैंने बोला था, अगर इस क्लास के अंदर 50-60 लोग आ गए, सब लोग इनवाइटेड है डिनर पे, सोशल ऑफर है, नॉट गिविंग राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक ऑफर क्या हो गया? लेट्स से मैंने आपको बोला है कि मैं सिर्फ ये फोन आपको सेल करूंगी 10,000 में, स्पेसिफिक ऑफर, राइट। जनरल ऑफर मैंने एसएल की वेबसाइट पे पोस्ट करवा दिया, राइट, कि ये मॉडल है, इट कुड बी एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड कैन सेंड मी द डिटेल्स, राइट। जो आपको शॉप्स के बाहर दिखता है 50% ऑफ, जनरल ऑफर। जो आपके मोबाइल पे आता है दैट्स फॉर स्पेसिफिकली यू, लेट्स से दिवाली 20, दैट इज ओनली फॉर यू, स्पेसिफिक ऑफर। दैट इज फॉर स्पेसिफिक पीपल। आपने पहले उनसे कुछ खरीदा होगा तभी वो उन स्पेसिफिक लोगों को ही वो ऑफर दे रहे हैं। इफ यू आर अ लॉयल कस्टमर, यू गेट टू हैव अ प्रीव्यू ऑफ सेल, सेल से पहले प्रीव्यू होता है, सबके लिए तो नहीं है। दैट इज नॉट अ जनरल ऑफर, स्पेसिफिक है क्योंकि आपने पहले उनसे लॉयल कस्टमर की तरह खरीदारी करी है, राइट। अगर लॉयल कस्टमर नहीं हो, एक बार ही खरीदा है, तो आपको उस तरीके का डिस्काउंट देंगे, ठीक है, तो दैट इज स्पेसिफिक। नेक्स्ट, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। ये ना शॉर्ट नोट में काफी बार आता है। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, मतलब फॉर एग्जाम्पल, हम सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने लेट्स से व्हाट इज दैट कॉल्ड, टेंडर ओपन करा कि हमें इतने टेबल चेयर माइक्स एंड रिकॉर्डर्स चाहिए, anybody who is interested can send their quotations, right। तो वो जो न्यूज़पेपर की एड है that is invitation to offer, I am inviting the entries, उनमें से जो लोएस्ट बिड होगा और हाईएस्ट क्वालिटी होगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है।
तो जो न्यूज़पेपर के अंदर ऐड है दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। जो आप लोग चिट्ठी के थ्रू या फिर मेल के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो कोटेशन, दैट इज ऑफर, मल्टीपल ऑफर्स। उनको सिलेक्ट करने का मेरा कोई क्राइटेरिया है एंड देन आई विल बी एक्सेप्टिंग एनी वन ऑफ द ऑफर। हाँ, दिस इज जनरल इन्विटेशन टू ऑफर। आईपीओ, आईपीओ इज व्हाट? आप कंपनी बोलती है कि हमें इतना पैसा रेज करना है, कोई भी कर सकता है, तो दैट आईपीओ जो इन्विटेशन है फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स, दैट आईपीओ इज इन्विटेशन टू ऑफर। यू आर ऑफरिंग टू बाय कंपनी शेयर्स, आप ऑफर दे रहे हो, राइट? क्या आपका फुल ऑफर एक्सेप्ट होता है या नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। गॉट इट? कौन है बाहर? सब उधर ही देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? आईपीओ की एड इज इन्विटेशन टू ऑफर। पीपल हु आर पुटिंग मनी सब्सक्राइबिंग टू द आईपीओ आर ऑफरिंग टू बाय द कंपनी शेयर्स। अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया देन कंपनी विल डिसाइड कि कितना एक्सेप्ट करना है आपका ऑफर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर के अंदर ही ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। दो पार्टीज होती हैं ऑफर के अंदर। ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, आई एम रेडी टू सेल माई मोबाइल फोन टू यू, स्पेसिफिक ऑफर फॉर 10,000, आई एम ऑफरर, यू आर द ऑफरी till the time you accept it, otherwise you are the acceptor। ठीक है, इसके अंदर बोला है कि दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। एक केस था जहां पे ये बोला लक्ष्मण वर्सेस गौरी दत्त, सॉरी लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस के अंदर क्या था, दैट देयर वाज अ सर्वेंट लालमन, गौरी दत्त वाज द मास्टर। ठीक है, मास्टर का नेफ्यू खो गया। ये बहुत पुराना केस है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? उसके हिसाब से बता रही हूं। गौरी दत्त का नेफ्यू खो गया, वेंट मिसिंग। लालमन शुक्ला ने बोला मैं ढूंढ के लाऊंगा, वो चला गया ढूंढने के लिए। आफ्टर लालमन शुक्ला द सर्वेंट वेंट टू सर्च फॉर द सन, द नेफ्यू। गौरी दत्त ने अवार्ड अनाउंस कर दिया, क्योंकि हाय तौबा तो मजा ही देते हैं गांव में सब लोग कि खो गया। तो 500 लोग इकट्ठे हो गए, 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, और वहां पे उसने ऑफर दिया दैट whosoever brings the nephew back will be given 500 rupees, 500 रुपए, राइट? इवेंचुअली ढूंढ के कौन लाया? लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला को तो ऑफर पता ही नहीं था। हेंस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के अंदर लालमन शुक्ला ने केस फाइल करा गौरी दत्त पे कि आप मुझे 500 रुपए नहीं दे रहे, मैं आपका बच्चा ढूंढ के लाया। बट क्योंकि यहाँ पे ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू लालमन शुक्ला, हेंस he cannot claim that 500 rupees reward. Okay, offer, next point, offer can have any legal term and condition. Offer can have any legal term and condition. ओके, टर्म एंड कंडीशन कुड बी एनीथिंग। लेट्स से मैंने ऑफर दिया और बोला कि इस मोबाइल फोन को मैं सेल करना चाहती हूँ, एंट्रीज विल बी इनवाइटेड थ्रू ईमेल ओनली, राइट? या फिर बाय पोस्ट ओनली, या फिर बाय कॉल ओनली। तो मैंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिए कि हाउ विल आई बी एक्सेप्टिंग द एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर मान लो डेविएटेड एक्सेप्टेंस है, मैंने बोला है मुझे ईमेल करो, आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी,
ठीक है, मतलब deviated acceptance, you are accepting my offer but not in the mode I have prescribed, it is deviated. इस केस के अंदर I, the offerer, is not compelled to accept your deviated acceptance. I can reject it कि ढंग से क्यों नहीं करी, राइट. बट लेट्स से एक ही बंदे ने बोला कि आपका मैं मोबाइल फोन खरीदने के लिए रेडी हूं एंड आई वांट टू सेल दिस, मजबूरी है लेट्स से, तो आई कैन इवन एक्सेप्ट द डिविएटेड एक्सेप्टेंस. मतलब आई एम नॉट कंपेल्ड, आई कैन डू एनीवे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट. हाँ हाँ, अगर वॉइड एब इनिशियो नहीं, वॉइड एब इनिशियो क्यों, देयर इज एवरीथिंग इज लीगल, वॉइड voidable, इसमें voidable है. It depends upon me, the offerer. I may accept it, I may reject it. It is voidable. ठीक है. Next, two identical cross offer do not make a contract. Two identical cross offers do not make a contract. Cross offer है. Two identical cross offers do not make a contract. दोनों ऑफर दे रहे हैं, there is nobody accepting it. ठीक है, तो there is no acceptance, hence there is no contract. Got it? Okay. आप लोग बताओ ऑफर किस तरीके से लैप्स हो सकता है, या फिर एक और टर्म लिख देते हैं रिवोक. क्या इन दोनों में कोई फर्क है? लैप्स, ऑफर का लैप्स होना, ऑफर का रिवोक होना. लैप्स विल बी खत्म हो जाना. हाँ, दोनों का एंड टर्मिनेशन है. इट लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, बट तरीका अलग अलग है. लैप्स इज ऑन इट्स ओन, टाइम खत्म हो गया, राइट. फर्स्ट 50 पीपल वर इनवाइटेड, 50 लोग आ गए, तो ऑफर लैप्स. सेल 7 दिन की थी, 7 दिन खत्म हो गए, ऑफर लैप्स. रिवोक इज व्हेन आई एम कट शॉर्टिंग द टाइम पीरियड ऑन माई ओन. 7 दिन की सेल थी, मैंने बोला कि नहीं 4 दिन की करो. आई एम रिवोकिंग, टेकिंग बैक. ठीक है, ऑफिशियली मैं खुद से खत्म कर रही हूं, राइट. लैप्स इज ऑन इट्स ओन, ये करा जाता है. हाँ नहीं, लेट्स से मेरे पास मटेरियल ही इतना था और वो खत्म हो गया, तो अब हमने बोला कि दिवाली की सेल जो पहले 7 दिन की थी, दैट इज ओनली कट शॉर्ट टू 4 days नाउ. ठीक है, अगर किसी ने प्री बुकिंग कर दी है, राइट, और वो 5वें दिन आता है, उसको देना पड़ेगा. हाँ ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस हो गई है. एक्सेप्टेंस से पहले अगर आप ऑफर रिवोक कर रहे हो, दैट इज ओके. लैप्स और किस तरीके से हो सकता है? लेट्स से मैंने बोला है चिट्ठी लिखो, आपने मेल कर दिया, ऑफर आपके लिए लैप्स. ठीक है, टाइम खत्म हो गया, किसी एक पार्टी की डेथ हो गई, राइट. ऑफर की बातें हो गई, एक्सेप्टेंस की बातें करते हैं. आई एम डूइंग इट इन वेरी शॉर्ट, क्योंकि आपकी एक तो क्लास बिल्कुल नहीं हुई है इसकी, ऊपर से सिलेबस बहुत सारा है. ठीक है,
मैं की पॉइंटर्स आपके सारे कवर कर रही हूँ। एडिशनल जो कुछ एग्जाम्पल्स या फिर कुछ केसेस होंगे वो आप रीड कर लेना बुक से, ठीक है। बुक SLM वट एवर सूट्स यू। एक्सेप्टेंस, सबसे पहला तो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा रिजेक्ट करो। अनक्वालिफाइड मतलब देयर शुड नॉट बी कंडीशंस अटैच्ड, नो इफ्स एंड बट्स। I'll be accepting, आपने बोला let's say I'll be accepting this mobile phone only if you upload these apps on it, only if आप compensation में changes करो, कुछ कैश कर दो कुछ काइंड कर दो, बट मेरी टर्म्स ही है कि मुझे कैश में चाहिए, तो यू आर काउंटर ऑफरिंग, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, इसमें लिखो एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड, ठीक है। आप एक्सेप्ट करके मन में बैठे हो, आप, मैंने बोला था मुझे मेल भेजना है, आपने ड्राफ्ट में मेल भी डिजाइन कर ली है, टाइम खत्म हो गया, मैंने आपको फोन नहीं दिया, किसी और ने जिसने मुझे मेल किया था मैंने उसे दे दिया, आप दिखाओगे कि देखो ड्राफ्ट पहले का मैंने लिखा हुआ है, तो भेजा तो नहीं ना, यू डिड नॉट एक्सप्रेस योर एक्सेप्टेंस इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। नेक्स्ट, acceptance must be communicated by the, acceptance must be communicated by the acceptor, acceptance must be communicated by the acceptor। आपकी बुक्स में इसमें केस दिया हुआ है, पॉवेल वर्सेस ली। इस केस के अंदर क्या हुआ था, इसको मैं ऐसे करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन था, इंटरव्यू देने के लिए गया फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर और प्रिंसिपल, ठीक है। सारा पैनल ने उससे क्वेश्चंस पूछे, पैनल वाज वेरी हैप्पी विद द पॉवेल, ठीक है। जब पॉवेल, लेट्स से देयर वाज सम, व्हाट डू आई से, देयर वाज सम informal interaction with one of the members of the board, let's say वॉशरूम में पॉवेल मिल गया, राइट, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड वर ली, ठीक है। ली ने उसे बोला कि आपका हो गया, आप ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। पॉवेल खुश हो गया, इट वॉज एन इनफॉर्मल इंटरक्शन, राइट। पॉवेल खुश हो गया कि हाँ मुझे ही सिलेक्ट करा है। जब रिजल्ट आया तो पॉवेल को सिलेक्ट नहीं करा था, राइट। पॉवेल ने केस फाइल कर दिया ली के ऊपर कि आपने तो बोला था कि मुझे सिलेक्ट कर लिया है। ली इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट दैट ऑफर ऑफ पॉवेल, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाज द होल पैनल, राइट। जब सारा पैनल, पूरी गवर्निंग बॉडी साइन करेगी किसी एक पर्सन की रिक्रूटमेंट पे, तभी वो रिक्रूट होगा, नॉट जस्ट इनफॉर्मल इंटरक्शन विद वन ऑफ द पर्संस। ही इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ही इज नॉट द एक्सेप्टर ऑफ योर इंटरव्यू का पोस्ट, ठीक। नेक्स्ट, acceptance must be given within a reasonable time, within a reasonable time, acceptance within a reasonable time। ओके, एक्सेप्टेंस समझ गए।
अब एकदम दिमाग खोल के बैठना, ठीक है। एक बॉक्स बना रही हूं मैं, हेडिंग डालो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड revocation. Three columns are there. First column is the basis. Second column is for offerer. Third column is for acceptor या फिर ऑफरी, लेट्स से बी। ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, नेम ऑफ द पर्सन। सबसे पहला पॉइंट लिखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इसके अंदर लिखो completes when, communication of offer completes when offer letter reaches, when offer letter reaches B। कम्युनिकेशन कैसे इसको पढ़ना है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर फॉर A is completed when the offer letter reaches B। ठीक है। थर्ड कॉलम में लिखो, थर्ड कॉलम के अंदर कैसे रीड करना है मैं बता रही, लिखना क्या है, अभी रुक जाओ। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर फॉर B completes when offer letter reaches, when offer letter reaches B। पहला दोनों के लिए सेम है, when offer letter reaches B। ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कब आप रिवोक कर सकते हो अपना ऑफर। जैसे मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट बोल दी थी कि अगर आप सेल 7 दिन की 4 दिन तक कट शॉर्ट कर रहे हो, राइट, बट बीच में किसी ने एक्सेप्ट कर लिया आपकी सेल और वो प्री बुक कर लिया और 5वें दिन आ रहा है, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होती है, जब वो उस तक पहुंच गई अगली पार्टी तक, और अगली पार्टी के लिए भी कब कंप्लीट होती है, जब वो उस तक पहुंच गई। पहला सिंपल। सेकेंड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। Communication of acceptance for offerer is completed when, for offerer is completed when acceptance letter is, when acceptance letter is, कौन पोस्ट करा acceptance letter, ये, when acceptance letter is posted by B। जो तारीख पे उसने पोस्ट करा ना, वो तारीख इज दी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। उसने चिट्ठी भेज दी है, राइट, जो चिट्ठी पे डेट लिखी है फॉर हिम, दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसी डेट पे उसने एक्सेप्ट करी है, राइट।
लिख लिया ये वाला पॉइंट, इधर लिखो, कैसे पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर बी इज कंप्लीटेड व्हेन acceptance letter reaches A. When acceptance letter reaches A, क्योंकि it could be lost in transit also, right? तो जब इसके पास कम्युनिकेशन पहुंच गई है कि हाँ यहां पर लेटर पहुंच चुका है 3 दिन के बाद, इसके लिए तब कंप्लीट हुई है बात। अगला, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, communication of revocation of offer for A completes when A posts the revocation letter. रिवोक कौन करेगा ऑफर को? A, right? So when A posts the revocation letter, ठीक, यहां पर आओ, communication of revocation of offer for B is completed when revocation letter reaches B. When revocation letter reaches B, जब इसके पास पहुंच गया है चिट्ठी तभी तो इसको पता लगेगा। अभी आएंगे आएंगे, ठीक है, when it reaches B. Fourth point, communication of revocation of acceptance. Communication of revocation of acceptance for A is completed when revocation letter reaches A. When revocation letter reaches A, अब यहां पे रिवोक कौन कर रहा है? एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हैं, राइट? तो जब ए के पास पहुंचेगा वो रिवोक्ड एक्सेप्टेंस, राइट, तभी तो इसको पता लगेगा। यहां पर आओ, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर बी इज कंप्लीटेड व्हेन, यही तो रिवोक कर रहा है, तो जब ये पोस्ट करेगा, राइट, व्हेन रिवोकेशन लेटर इज पोस्टेड बाय बी, when revocation letter is posted by B. अब एक इसके नीचे स्टार मार्क करके लाइन लिखो, ऑफर may be revoked any time, offer may be revoked any time before the communication of its acceptance, before the communication of acceptance is completed against the offerer, मतलब A. Offer may be revoked any time before the communication of its acceptance is completed for the offerer A. ये वाला पॉइंट होगा, right? Before this happens, if you revoke the offer, it is good. अगला पॉइंट, acceptance can be revoked. अभी तो ऑफर रिवोक करा है, अब भी एक्सेप्टेंस भी तो रिवोक कर सकता है। Acceptance can be revoked anytime before the communication of acceptance is complete
अगेंस्ट बी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, राइट। ऑफर के लेटर पहुंचने से पहले पहले अगर आपने एक और चिट्ठी लिख दी है, राइट, 3 दिन लगते हैं लेटर पहुंचने में, दूसरे दिन ही आपने लिख दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हैं, चिट्ठी के ऊपर डेट लिखी हुई है, राइट, उस तक पहुंची 3 दिन के बाद, बट आपने दूसरे दिन पे ही मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, दैट विल बी अ वैलिड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यू हैव लाइक 5 मिनट्स, उसके बाद अगला टॉपिक। ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट में अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। Else we'll start with consideration. दो चीजें इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन में, पहली मनी या मनी इज वर्थ, दूसरा समथिंग इन रिटर्न, इट शुड बी समथिंग इन रिटर्न, दूसरा या तो मनी या मनी इज वर्थ, कैश या काइंड का ऑल्टरनेटिव वे है बोलने का, राइट, मनी मतलब कैश, इन काइंड मतलब मनी इज वर्थ, राइट। लेट्स से ये फोन मैं सेल कर रही हूँ और मुझे इन रिटर्न कुछ 5-6 नॉवल चाहिए, दैट इज मनी इज वर्थ, दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, that will make a valid contract. Remember contract फॉर्म करने के लिए आपने agreement, law, promise plus consideration किया था। promise कैसे बना था? offer plus acceptance. offer plus acceptance is promise between two parties. When you add some consideration to it, it is an agreement. Agreement when enforceable by law is a contract. तो ये होना जरूरी है contract बनाने के लिए, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, मनी और मनी इज वर्थ, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है। रिमेंबर फॉर एग्जाम, एक्सेप्शंस, ऑल एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? दो चीजें पता लग जाती हैं कि आपको असली कॉन्सेप्ट भी पता है और उसके एक्सेप्शन भी पता है, राइट। तो एग्जामिनर ऑलवेज ट्राइज टू इतना सारे सिलेबस के अंदर क्या पूछे, एक्सेप्शन तो करके जाना हर चीज की। ओके, कंसिडरेशन के कुछ की पॉइंटर्स। कंसिडरेशन मे बी फॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्ट्स। कंसिडरेशन मे बी फॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्ट्स। पास्ट मतलब मैंने पिछले महीने पढ़ाया था, उसकी पेमेंट मुझे आज मिल रही है, मैंने आज पढ़ाया, उसकी पेमेंट मुझे आज मिल रही है, मैं कल पढ़ाऊंगी, उसकी पेमेंट भी मुझे आज ही मिल रही है, ठीक है। इट कुड बी फॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्ट्स। नेक्स्ट, कंसिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट। कंसिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट। बोला कुछ किसी ने? कंसिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट, ठीक है। इनएडिक्वेट का मतलब जितना होना चाहिए उससे कम, हाँ, प्रोवाइडेड देयर इज अ फ्री कंसेंट, देन कंसिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फ्रेंड, लेट्स से यू वांट टू सेल योर मोटरसाइकिल, राइट। तुमने सोचा अपने दोस्त को ही सेल कर देते हैं, 80,000 की बाइक थी, आपने बोला चल तुम्हारे लिए 10,000। Only if that person is giving that 80,000 की बाइक in 10,000 with genuine and free consent, then that consideration is a valid consideration, ठीक है। Consideration can be inadequate, ये आपके शॉर्ट उसमें पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कि this is the market price but the person is selling it for half of the market price or 1/10 of the market price, is that valid consideration? On the face of it लग रहा है कि नहीं,
बट आप बोलोगे हाँ, कंसिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट प्रोवाइडेड द कंसेंट इज फ्री। ठीक, हाँ, लेट्स से बार्गेनिंग भी नहीं चली यहाँ पे। दिस इज लाइक हाईली अनएक्सेप्टेबल चीज कि 80,000 की बाइक 10,000 में थोड़ा बेचेगा कोई, राइट? मान लो तुमने 5,000 में बेच दी, बट बिकॉज यू आर सेलिंग इट टू अ लेट्स से a friend of yours who is in need and consent is free, तब तक consideration is valid। ठीक है, नेक्स्ट, consideration must move at the desire of offerer। Consideration must move at the desire of offerer। ऑफरर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पास से जा रही हूँ, मुझे एक इंडिपेंडेंट एक घर है, उसके आसपास कुछ नहीं है, उसमें आग जलती हुई दिखी। मैंने कॉल कर लिया फायर एक्सटिंग्विशर वालों को, लेट्स से एम्बुलेंस को भी कॉल कर लिया कि अंदर कोई हो, तो कुछ खर्चा हुआ मेरा। लेट्स से प्राइवेट लोगों को मैंने कॉल करा, राइट? ऑफरर ने तो नहीं बोला करो, वो घर के मालिक ने तो नहीं बोला करो, तो आई एम नॉट सपोज टू गेट एनी पेमेंट आउट ऑफ इट, राइट? आई एम नॉट सपोज टू गेट एनी पेमेंट, वन बिकॉज इट इज अ वॉलंटरी एक्ट। ठीक है, मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मुझे पहले भी पता था मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इफ दैट पर्सन देन आफ्टर लेट्स से 1 मंथ उसका मालिक घूमता हुआ दिखा पार्क में, अगेन टकराया मुझसे, उसने बोला कि उस दिन आपने हेल्प करी थी, आपका जो भी पैसा बनता है आप मुझे बता दो। मैंने बता दिया, लेट्स से 5,000 रुपए लगे थे। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको उसमें से 3,000 रुपए पे करने के लिए रेडी हूँ। या तो फुल भी पे कर सकता है, ज्यादा ही पे कर सकता है, कम भी पे कर सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर हिम टू पे, बट अगर उसने अग्री अब करा है देन ही हैज टू पे, राइट? दूसरा केस, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट्स हैं एक दूसरे से चिपके हुए, सिलेंडर होते हैं हर किसी के घर में। वैसे पुराना केस है, सिलेंडर थे हर किसी के घर में, पाइपलाइन नहीं है। साइड वाला ऊपर वाला फ्लैट है जो कि आग लग रही है, तो एज अ गुड नेबर आपने उसको बुझाने में प्रॉपर हेल्प करी, खर्चा भी करा, राइट? अपना भी ऐसे कुछ तोड़ ओड़ के कुछ उनका घर बचाने में हेल्प करी। इज इट अ वॉलंटरी एक्ट? नो। फ्लैट के अंदर अगर आग लगी है, इट इज नॉट अ वॉलंटरी एक्ट, क्योंकि यू आर एट ऑल्सो अ रिस्क, राइट? इफ इट इज एन इनवॉलंटरी एक्ट, यू विल गेट द पेमेंट। ओके, अब एकदम पड़ोसी के घर में ही आग लग रही है, बिल्कुल चिपके हुए घर हैं, आपको डर है कि आपका सिलेंडर ना फट जाए, हेंस यू आर प्रोटेक्टिंग देम। दिस इज नॉट अ वॉलंटरी एक्ट। अगर वॉलंटरी एक्ट नहीं है, यू विल गेट द पेमेंट, जो भी आपने खर्चा करा है। यू कैन सीक पेमेंट फ्रॉम द ओनर, राइट? ऐसे बुरे समय पे कोई करता नहीं है ऐसा, बट करो तो लीगल है आपको पेमेंट लेना। ओके, नेक्स्ट, दो पॉइंट्स लिखो इसके कंसिडरेशन के अंदर। A stranger to consideration can sue. A stranger to contract cannot sue. A stranger to consideration can sue. A stranger to contract cannot sue. हाँ, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि आई एम, लेट्स से यू आर गिविंग मी मनी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन रिटर्न,
right? You are giving me money, I am not doing anything in return, still I can sue you. Okay, अभी बताती हूँ. But a stranger to contract cannot sue. For example, there is a case in your books, चिन्मया versus रमाया. ठीक है, इसके अंदर क्या है, देयर इज एन ओल्ड लेडी, उसकी एक डॉटर है और ओल्ड लेडी का भाई है, लेट्स से भाई है, आई डू नॉट रिमेंबर द रिलेशन दैट दे हैव टोल्ड, लेट्स से देयर इज अ भाई ऑफ दैट ओल्ड लेडी, तो उस बच्ची का वो मामा लगा. ठीक है, इस केस के अंदर ओल्ड लेडी ने बोला अपनी डॉटर को, मदर ने बोला अपनी डॉटर को कि आप मामा को मंथली इतनी इतनी पेमेंट कर देना, क्योंकि मैं भी करती आई हूं. लड़की ने बोला ठीक है कर दूंगी. लड़की ने आधा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, राइट? उसको लगा कि वन साइडेड कंसिडरेशन ही तो है, मैं नहीं पे करूंगी, वो मेरे पे केस थोड़ी ना फाइल करेगा. बट मामा न्यू कि आई एम अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? मामा इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लेट्स से मामा इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, ही इज नॉट एबल टू वर्क, इसीलिए मदर ने अपनी डॉटर को बोला कि बिकॉज आई एम नाउ ओल्ड, आप अपने मामा को ये पेमेंट कर देना. लड़की ने सोचा कि नहीं जरूरत नहीं है, वन साइडेड कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, राइट? मैं ही पेमेंट कर रही हूँ, सामने से तो कुछ आ नहीं रहा है, तो मैं और सामने वाली पार्टी उस पर केस भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन रिटर्न तो वो कुछ नहीं कर रहे. कंसिडरेशन इज व्हाट? इन रिटर्न, पहला पॉइंट. दूसरा, मनी मनी इज व्हाट, तो वो केस फाइल नहीं कर पाएंगे. बट यहां पर मामा ने केस फाइल कर दिया, चिन्मया. ठीक है, चिन्मया ने केस फाइल करा रमाया लड़की के ऊपर, डॉटर के ऊपर, और बोला कि आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, आई एम अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, हेंस आई कैन स्यू. आई एम अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, मतलब मैं इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा, स्टिल आई कैन स्यू बिकॉज आई एम अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एनीबडी हु इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दे आर नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में उनका मेंशन नहीं है, उनको भी नहीं पता है. ठीक है, एंड दे मे बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, मतलब उनको आप दे रहे हो, उनसे कुछ ले नहीं रहे हो. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन या फिर वन साइडेड कंसिडरेशन, स्टिल दे कैन स्यू. ओके, जल्दी से एक्सेप्शंस करके खत्म करते हैं आज की क्लास. एक्सेप्शंस मतलब हमने बोला है कि कंसिडरेशन के अंदर देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, राइट? मैं अगर फोन दे रही हूं तो तुमसे पैसे भी ले रही हूँ, या फिर तुमसे 5 नॉवल ले रही हूँ अपनी पसंद की. ठीक है, तो देयर इज समथिंग इन रिटर्न. एक्सेप्शंस बोलती है इवन व्हेन देयर इज नथिंग इन रिटर्न, दैट आल्सो मेक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, ठीक है, एक चैरिटी वाला केस हो गया. हाँ, हाँ, इसमें लिखो नंबर 1, agreements made on account of natural love and affection. Agreements made on account of natural love and affection. इसमें 4 चीजें होना जरूरी है. रिटन, रजिस्टर्ड, पार्टी शुड बी इन नेयर रिलेशन, and they are made on account of natural love and affection, right? husband wife, father son, father daughter, इस तरीके का कोई रिलेशन होना चाहिए. near party should be in near relation, not necessarily blood relation. written, registered, written, registered, parties are in near relation and there is natural love and affection. मान लो हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स होने वाला है, राइट? वाइफ ने जबरदस्ती कुछ लिखवा लिया, उसको रजिस्टर करा लिया,
देयर इज नो लव एंड अफेक्शन. ओके, इस केस के अंदर इवन इफ देयर इज ओनली वन साइडेड कंसिडरेशन, राइट, that is a valid consideration, and if the party stops one sided consideration, the other party can sue, right? There need not be anything in return from the other party for it to make a valid contract. It is a valid thing. ठीक, okay. Next exception, charity. चैरिटी वाला वही केस है कि आप पेमेंट कर रहे हो और सामने वाली पार्टी ने आपके भरोसे पे कुछ काम करना शुरू कर दिया है, देन यू आर कंपेल्ड टू पे इवन इफ देयर इज नथिंग इन रिटर्न टू यू फ्रॉम द ऑर्फनेज. अगर आपको ऑर्फनेज ने बोला है दैट ओके यू हैव प्रॉमिस्ड दिस, बहुत टाइम से हमारा पार्क कंस्ट्रक्शन, बहुत टाइम से बच्चों के लिए ये 3 बुक्स लाने के लिए बची थी, राइट, अब हम इस पैसे से वो लेके आ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर प्रॉमिस. हम उनको लेट्स से एक यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कुछ भी उनका कुछ उन्होंने बोल दिया आपको कि हम अब अपने बच्चों के लिए ये करेंगे. अब यू आर कंपेयर्ड, आपको कुछ नहीं मिल रहा है इन रिटर्न, बच्चों को मिल रहा है, बट यू आर कंपेयर्ड. ठीक है, मतलब उन्हें कुछ उस अमाउंट के प्रॉमिस के बेसिस पे उनको भी कुछ करना है. ये नहीं कि आप उनके अकाउंट्स देखते हो 10,000 रुपए आया, 10,000 रुपए उनके अकाउंट में गया और दोबारा कभी यूज ही नहीं हुआ, राइट. अगर वो केस फाइल करते हैं कि देखो हमने तो ये करा था, ये करा था, हमने पार्क का कंस्ट्रक्शन शुरू करना था, आपने पैसा रोक दिया, आप उनकी स्टेटमेंट मांगोगे 10,000 रुपए आ तो रहा है बट वो पड़ा हुआ है, आपने कब शुरू करना है, 1 साल से मैं दे रहा हूं, मैंने दूसरे साल बंद कर दिया, आपने कभी कुछ शुरू ही नहीं किया, देन यू आर नॉट कंपेयर्ड टू पे. देन ऑल्सो दे हैव टू लाइक कुछ तो कंस्ट्रक्टिव वो कर रहे होंगे, किसी कंस्ट्रक्टर से बात कर रहे होंगे, उनके साथ कोई साइन होगा, कोई डीलिंग होगी, कोई अग्रीमेंट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहीं पे विजिट करा होगा, दे हैव टू प्रोवाइड सम प्रूफ कि हम कुछ करने की सोच रहे हैं, राइट. ओनली इफ दे प्रोवाइड द प्रूफ, ओनली देन यू आर कंपेयर्ड, अदरवाइज यू आर नॉट कंपेयर्ड. ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी, व्हाट इज एजेंट? एजेंसी में 2 पार्टीज होती हैं, प्राइमरीली 2 होती हैं और भी हो सकती है, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड देयर इज अ क्लाइंट, राइट. प्रिंसिपल बोलता है अपने एजेंट को कि इस क्लाइंट के लिए ये काम करो, राइट. लेट्स से ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर इज द एजेंट जो प्रिंसिपल के बोलने पे फ्रूट्स को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ड्राइव करके लेके जा रहा है. ठीक है, इस केस के अंदर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है दैट देयर नीड नॉट बी समथिंग इन रिटर्न, एजेंट कैन वर्क फॉर फ्री. मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एजेंट, 2 टाइप के एजेंट हम मान लेते हैं. एक एजेंट है जो कि माइनर एज का है, एक एजेंट है जो कि मेजर एज का है. एजेंट कैन बी ऑफ एनी एज, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखा हुआ है. एजेंट कैन बी ऑफ एनी एज, माइनर और मेजर. ठीक है, अगर आपने माइनर एजेंट को अपॉइंट करा हुआ है, काम उससे करवा रहे हो, पेमेंट नहीं दे रहे हो, that minor agent can hold the principal responsible for all the acts, whether done under his duties purview or beyond his duties purview. Beyond मतलब आपने बोला था कि लेट्स से एक चीज डिलीवर करने को बोली थी, उसने 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा कर दी,
तो उन एक्स्ट्रा चीजों के लिए भी माइनर कैन होल्ड प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पहली बात आपने बच्चे को अपॉइंट क्यों करा है, अगर वो कुछ गलत काम कर भी रहा है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरा एजेंट है मेजर, मेजॉरिटी पार्टी है, मतलब 18 से ऊपर का इंसान है। उस इंसान को बोला गया कि आपने डिलीवर करना है, राइट। फॉर द एक्ट्स डन विद इन हिज ड्यूटीफुल पर्सपेक्टिव, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। फॉर ऑल द एक्ट्स डन बियॉन्ड व्हाट वाज टोल्ड, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, उसने 1, 2, 3 काम के अलावा 4 और 5 भी कर दिया, तो 4 और 5 के लिए ही हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल। 1, 2, 3 जो ड्यूटी के विदिन है उसके लिए प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो ये जो काम है दिस कैन बी डन इवन लेट्स से एजेंट ही काम कर रहा है, उसको पेमेंट नहीं मिल रही है, इवन देन दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन होल्ड दिस पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ओके, नेक्स्ट, agreement to compensate, agreement to compensate for the past voluntary service, agreement to compensate for the past voluntary service। फॉर एग्जाम्पल वो जो घर आग लगी हुई थी, आप पार्क में जा रहे थे, वो घर पे आग लगी हुई थी, राइट, इट वॉज अ योर वॉलेंटरी एक्ट उसको बचाना, नोबडी टोल्ड यू टू डू इट। तो ओनर मिला आपको 1 महीने के बाद, उसने बोला कि खर्चा कितना आया, 5,000, ओके मैं आपको 7,000 दूंगा। नाउ अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, राइट, इवन व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ओनली कंसिडरेशन इज फ्लोइंग वन साइडेड फ्रॉम दैट बंगलो ओनर टू यू, यू डिड इट, आपने नेकी कर दरिया में डाल कर दिया आपने, वॉलेंटरी एक्ट। बट अब उसने आपसे मिलके बोला कि मैं इतना पे करने के लिए रेडी हूं, इधर फुल और मोर और आधा। 5,000 खर्च हुआ था, वो 3,000 भी पे कर सकता है, 5,000 भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, जो भी उसने अग्री करा है, नाउ दैट इज शुड बी एप्लीकेबल, दैट इज लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एक और इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो एक्सेप्शन के अंदर, अग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट, agreement to pay a time barred debt, BARRED, time barred debt। फॉर एग्जाम्पल किसी ने उधार लिया था मुझसे, मैंने ना उसकी इंटरेस्ट पेमेंट मांगी ना उसका प्रिंसिपल पेमेंट मांगा फॉर 3 years, मैं भूल गई, राइट, लेट्स से आई एम अ प्राइवेट मनी लेंडर और आई फॉरगॉट कि 3 साल तक कुछ भी ना इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल कुछ नहीं मांगा। Now it is not his responsibility to pay me. Time barred हो चुका है, he will enjoy. Still, out of good human courtesy उसने सोचा कि पे कर देता हूं, कितना, पूरा, आधा, ज्यादा, जो भी उसका मन है, right? I am not doing anything in return. I had lost all hopes कि कुछ पैसा भी आएगा, but time barred debt 3 साल के बाद भी आ रहा है, I am not doing anything in return. Still money is coming, right? Now उसने जो भी नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो उसके अकॉर्डिंगली पैसा देगा, even when I am not doing anything in return, one sided payment only। नहीं, अगर टाइम बार हो चुका है, मतलब 3 साल हो गया, मैंने ना इंटरेस्ट मांगा ना प्रिंसिपल मांगा, ना उसको कॉन्टैक्ट करा, ना उसको नोटिस भेजा, ना उसको सर्कुलर भेजा, ना उसको मेल करा, ना उसको टेक्स्ट करा, अब वो अपनी मर्जी से दे रहा है, जो दे रहा है, कम दे रहा है तो भी मुझे अग्री करना पड़ेगा, ज्यादा दे रहा है तो भी, उतना ही दे रहा है तो भी। ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शंस।